علیم خان صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خان صاحب کی جو ترجیحات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کنسرن ہے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا، وہ جو لوگوں کو اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے مہنگائی کا، اس کے اوپر کنسرن سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے۔ میں آپ سے 2-3 چیزیں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے پچھلے سال جب گندم خریدی تھی تو اس وقت ہم نے یہ عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آٹے کی قیمت جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں گے اور پورا سال جو ہے اس کے اوپر ہم پہرا دیں گے۔ الحمدللہ آج سال وہ ختم ہو گیا اور ہماری نئی پریکیورمنٹ جو ہے گندم کی شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے 860 روپے سے اپنی قیمت کو نہیں بڑھنے دیا اور الحمدللہ ہم نے خاص طور پہ ایسے مہینوں میں جب زیادہ پریشر ہوتا ہے، خاص طور پہ سردیوں میں، اس میں بھی ہم نے کنٹرول کیا اور الحمدللہ یہ پورا سال جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ نہ صرف ہم نے عمل کیا بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس وقت گندم کی پرائس جو ہے وہ ہم نے ریکارڈ جو ہے وہ 400 روپے کا اضافہ کیا اور کسان جو ہے الحمدللہ اس سال نہ صرف کہ جو ہمارے گنے کے کاشتکار تھے ان کو ریکارڈ منافع ہوا بلکہ انشاءاللہ گندم کے جو کاشتکار ہیں ان کو بھی اس کے اندر ریکارڈ منافع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ اور میں بہت مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ زراعت اور ہمارا کسان جو کہ اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، الحمدللہ اس دفعہ ہم نے اپنے کسان کی خوشحالی کے لیے وزیر اعظم نے خاص طور پہ جو ہے وہ یہ پرائس جو ہے وہ اناؤنس کی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ 4 ملین تھا اور ہم نے پہلے 3.5 ملین رکھا تھا، پھر 4 کیا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 4 ملین سے لے کے 5 ملین تک اس کو بڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ریکارڈ جو پریکیورمنٹ ہے گندم کی وہ انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ ساؤتھ پنجاب سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور کل سے ہمارے خریداری مرکز جو ہیں وہ تمام پنجاب میں جو ہے وہ فعال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو قیمت ہے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے وہ جو 860 روپے پہ ہم دیتے تھے رمضان بازاروں کے دوران، ہم نے اس کے اندر بھی ایک خصوصی پیکج کا اناؤنس کیا ہے اور وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ ہم اپنے عوام کے لیے رمضان کے دوران میں خاص طور پہ جب کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ہم ایک خصوصی پیکج کا اعلان کریں، تو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ ہم نے اس کا پیکج کا اعلان کر دیا ہے اور 375 روپے کے اوپر ہمارا جو 10 kg کا تھیلا ہے وہ مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے خصوصی رمضان بازار لگ رہے ہیں ان کے اندر اویلیبل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام جو قیمتیں ہیں وہ تمام چیزوں کی، خواہ وہ پھل ہو، خواہ وہ سبزیاں ہوں، خواہ وہ چکن ہو، خواہ وہ انڈے ہوں، یہ ساری چیزوں میں ہم کوشش کریں گے کہ منیمم 25% جو ہے ان میں کمی کی جائے اور یہ تمام جتنے بھی پیکج ہیں یہ تمام بازاروں میں جو پورے پنجاب میں لگ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو شوگر کا ہے، شوگر کے لیے بھی ہم نے اس کی پرائس جو ہے وہ 80 روپے سے جو کہ اس وقت مارکیٹ میں 85 روپے کا ہے، 80 روپے ایکس مل ہے اور ریٹیل جو ہے وہ 85 روپے ہے اور اس کے اوپر الحمدللہ ایک ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہائی کورٹ ہے اس نے بھی اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے ہماری جو ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس قیمت کے اوپر جو ملے ہیں ان سے چینی اٹھا سکیں اور ریٹیل میں ہم تقریباً 20 سے 25 روپے جو ہے جو کہ 125 تک جس کا اندیشہ تھا کہ پہنچ جائے گی، ہم نے اس کو کم کر کے تو 100 روپے سے آج ہم انشاءاللہ اس کو 85 روپے پہ لے آئے ہیں۔ زیادہ تر جگہوں پہ 85 روپے ہو گئی ہے، اگر کسی جگہ پہ شکایت آئی تو ہم اس کے اوپر فوری کارروائی کریں گے۔ اس پہ میں پورے پنجاب کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ ہم کسی قسم کی بھی کوئی رعایت نہیں دیں گے اور جہاں بھی ہمیں سختی کرنی پڑی، جس لیول کی بھی سختی کرنی پڑی، وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے کہ ہم سختی کریں گے۔ نہ آٹے پہ کوئی رعایت ہوگی، نہ ہی چینی پہ کوئی رعایت ہوگی اور انشاءاللہ ہم جو فیصلے ہم نے کیے ہیں، جن قیمتوں کے ہم نے کیے ہیں اس کے اوپر ہم عمل درآمد کروائیں گے۔ اسی طرح رمضان میں جو چینی کا ہمارا 1 کلو کا تھیلا ہوگا وہ 65 روپے کا ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی 20 روپے کی کمی آ رہی ہے۔
इसी तरह हमारी जो बाकी चीजें होंगी, दालें होंगी, सब्जियां होंगी, फ्रूट होंगे, ये सारी चीजों में हम जो है वो 25% मिनिमम जो है वो मार्केट से इसको सस्ता लेके जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात हाईलाइट करना चाहता हूं कि वजीर आजम की जो इसके ऊपर फोकस है वो इतना ज्यादा है कि हर हफ्ते वजीर आजम जो है वो एक मुवाजना जो है वो पिछले हफ्ते से कीमतों का करते हैं और हर हफ्ते उसकी रिपोर्ट बनती है और हर हफ्ते वो इसके इजलास की सदारत करते हैं जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ कीमतों के बारे में पूरा जो हमारा फेडरल स्टैट्स का अदारा है वो स्टैट्स सारी देता है ताकि वजीर आजम एक एक चीज के ऊपर, दालों की कीमतों के ऊपर, चिकन की कीमतों के ऊपर, हमारे आटे की कीमतों के ऊपर एक एक चीज देखते हैं। अफसोस मुझे इस बात पे है कि जब पूरा साल हम 860 रुपए के ऊपर पंजाब में आटा जो है वो बिकवा रहे थे, उस वक्त कराची में उस थैले की कीमत जो है वो 1200 से 1300 रुपए तक रही है और 1200-1300 रुपए पे भी हुकूमत सिंध को कोई जो है वो एहसास नहीं हुआ कि 400 रुपए का फर्क है इसी मुल्क के अंदर एक शहर से, एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर। तो मेरी अब भी सूबा सिंध से गुजारिश है कि अब भी आप जब प्रिक्योरमेंट करने लगे हैं, आपने बेशक 2000 रुपये रेट लिया, खुदारा आप 2000 रुपये पे प्रिक्योर कर भी लीजिएगा और अपनी गंदम ये सिर्फ सियासी तौर पे 2000 का नारा ना लगाइएगा। हम 1800 पे खरीद रहे हैं, आप 2000 पे अब खरीदें और अपने काश्तकार को रिलीफ दें और उस गंदम को लेके आप लोगों को बाद में वो जो हमारे फ्लावर मिल्स हैं उनको सस्ती सब्सिडाइज करके दें ताकि पूरे मुल्क में एक ही रेट रहना चाहिए। हर जगह पे अलग अलग रेट नहीं होने चाहिए, खा वो पिशावर हो, खा कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, सब जगह पे एक रेट होना चाहिए। और मेरी गुजारिश होगी वजीर आला सिंध से कि आप इस पे खुसूसी तवज्जो करें। पिछला साल लोगों को, बेचारों को बहुत तकलीफ हुई है, कराची के लोगों को, पूरे सिंध के लोगों को, और आपने बहुत 400 रुपया एक बैग के अंदर जो है वो गरीब जो हमारा सिंधी भाई है उसको इस पे नुकसान उठाना पड़ा है। अब भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उनका ख्याल करें और उनको खुसूसी पैकेज दें, खास तौर पर ये रमजान के अंदर। और मेरी आखिर में आप सबसे ये अपील होगी कि जहां पे भी हमारे मीडिया को नजर आए कि ये जो फिक्स कीमतें हमने की हैं, अगर इसमें आपको किसी जगह पे वायलेशन नजर आए, किसी जगह पे आपको लगे कि लोग ये जो चीनी की कीमत है, ये आटे की कीमत है, इससे बढ़ के बेच रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे इल्म में लाएं, हमारे नोटिस में लाएं, ताकि हम फौरी तौर पे उसका सद्देबाब कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले के सवाल हम आपसे लें, दो अहम चीज़ें जो इन्हीं की उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एक तो ये जो पैकेज है रमज़ान पैकेज, जिसकी वज़ीर आज़म की क़यादत में आज मंजूरी दी गई है, ये 5.5 अरब का रमज़ान पैकेज है। इसकी मद में जो 25 शबान से रमज़ान बाज़ार जो है उनका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और ये बाज़ार जो है वो 21 रमज़ान तक जारी रहेंगे। 21 रमज़ान के बाद यही बाज़ार जो है वो ईद बाज़ारों में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ईद के बाद इन बाज़ारों को सहूलत बाज़ारों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये 364 ये सहूलत बाज़ार जो है पंजाब भर में कायम होने जा रहे हैं। इन बाज़ारों के अंदर जो मियारी, सस्ती और फौरी ज़रूरी अशियाए ज़रूरत जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में कायम किया जा रहा है, ताकि जहां कहीं पे भी वो डिमांड सप्लाई गैप नजर आया या कोई ऐसी नाकस सप्लाई उन बाजारों में दस्तयाब हुई तो उन मुतलका ज़िला इंतजामिया के खिलाफ बर वक्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अहम तरीन आज प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे क़यादत जो फैसला हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि चीनी की कीमत जो है वो हुकूमत ने उसके नरख मुकर्रर की है और कोर्ट ने हुकूमती काविश और इस पब्लिक के लिए उठाए गए इकदाम को सराहते हुए हुकूमती जो अमलदारी थी उस पर मोहर लगाई। दूसरी चीज 155 मीट्रिक टन के लिए, चूंकि रमजान के दौरान ये हमारी कंजम्पशन है पंजाब में और इसको हर हाल में अनइंटरप्टेड
चेन सप्लाई के तौर पे 155 मैट्रिक टन ये मिलें पाबंद होंगी हुकूमत पंजाब को दस्तयाब करने के लिए। और जो 2018 की कीमतें थी, आज 2021 में भी हुकूमत पंजाब ने उन सहूलत बाजारों में, रमजान बाजारों में ये फैसला किया कि 2018 की जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें थी हम उन पे उनको लॉक करने जा रहे हैं और उसी कीमत पे जो है वो हम सारिफ को जो है वो अशिया फराहम करने जा रहे हैं। चूँकि मेरे भाई ने बात की है आटे और चीनी की, तो इसके साथ साथ घी जो है एक इंतहाई अहम ज़रूरत है इस वक्त हर घर की। और हम ये देखते हैं कि रमज़ान के दिनों में ये कुछ मुनाफाखोर और ज़हीरा अंदोज जो है उसकी कीमत को बढ़ाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज हदायत जारी की है कि जिस तरह से हमने चीनी की कीमतों में रेगुलेशन ला के, लेजिस्लेशन ला के उसको कंट्रोल किया और एक्स मिल प्राइस फिक्स की है, इसी तरह घी की कीमतें जो है उनको भी हुकूमत जो है इंपोर्ट से लेके मैन्युफैक्चरिंग और फिर सप्लाई तक की जो चेन है उस पर नजर रखने जा रही है। और ये जो रातों रात इजाफा और आवाम को महंगाई के शिकंजे में जकड़ने वाला माफिया है उसको भी कानूनी शिकंजे में लाने जा रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो आप डॉक्टर भाई जी शाहिद साहब। जी खान साहब, ये फरमाएगा कि रमजान बाजारों के हवाले से आपने एक अच्छा पैकेज जो है वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म जो है वो देने जा रहे हैं। ये फरमाएगा कि कितने फीसद लोग हैं जो कि रमजान बाजारों से मुस्तफीद हो सकेंगे पंजाब में, और उसके साथ जो आम बाजार मार्केटें हैं उसमें कीमतों को सरकारी नरफनामों पर कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और उनको यकीनी बनाया जाएगा, इस हवाले से क्या हुकूमत की प्लान? जी, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हुआ ये कि रमज़ान का जब आगाज़ हो रहा है ये वो टाइम है जिस वक्त हमारी प्रोक्योरमेंट का भी आगाज़ हुआ और हम इस वक्त गंदम की खरीदारी कर रहे हैं। जब हम गंदम की खरीदारी कर रहे होंगे तो हम उसको साथ साथ गंदम को रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा जो है वो घपला हो सकता है कि एक तरफ से आप गंदम रिलीज कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वही गंदम जो है वो घूम के वापस आपके पास खरीदने के लिए भी आ रही है। तो इसलिए हमने इसके अंदर फैसला ये किया है कि हमारा जो पैकेज होगा उसमें जो 10 किलो का आटा है उसका कलर चेंज किया जा रहा है, उसको सब्ज रंग का किया जा रहा है, ताकि इसकी जो मुनाफाखोरी है या इसको किसी और जगह पे रख के बेचना जो है वो मुमकिन ना हो, और उसके ऊपर बाकायदा कीमत लिखी जा रही है। और ये तमाम पैकेजेस, ये तमाम जो हमारे रमजान बाजार है अब तो उसमें होगा। और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये इसके बाद यही बाजार जो है ये सहूलत बाजार में कन्वर्ट किए जाएंगे। जब तक हमारे पास टारगेटेड सब्सिडी का मैकेनिज्म नहीं आता तब तक हम ये सहूलत बाजारों को जारी रखेंगे, और ना सिर्फ ये कि उस पे आटे की कीमत में बल्कि शुगर की कीमत में, और साथ साथ हमारे जिस तरह अभी आपा फरमा रही थी कि इसके अंदर हम जो घी की कीमत है उसको भी जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारी जो बाकी जरूरियात हैं जैसे कि चिकन है, पोल्ट्री है, जो अंडे है वो है, हमारे फ्रूट है या हमारे जो सब्जियां हैं, ये सारी जो चीजें हैं इन सारों के ऊपर भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस सहूलत बाजार जो है इसके ऊपर हुकूमत निगरानी रखेगी और इनमें कीमत नहीं बढ़ना चाहिए। पहुंच जाएगी, हमने उसको कम करके 100 रुपए से आज हम इंशाल्लाह उसको 85 रुपए पे ले आए हैं। ज्यादातर जगहों पे 85 रुपए हो गई है। पहले तो मुझे किसी शाइए पे नहीं बुलाया गया, तो मेरे ख्याल में बिन बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मोटो था हमारे वजीर आजम साहब का, वो बड़ा सिंपल था और बड़ा क्लियर था। हमने जो 10 साल की जदोजहद की है और जहांगीर साहब उसके अंदर हिस्सेदार रहे हैं हमारे, और उन्होंने जदोजहद में, हमारी जदोजहद में पीटीआई का बहुत साथ दिया, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वो मोटो क्या था? वो मोटो ये था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, इंसाफ सबके लिए बराबर। तो मैं मेरे ख्याल में इस प्रोसेस में तो खुद भी गुजरा हूँ, और मैंने किसी दिन भी बैठ के कोई गिला, कोई शिकवा, कोई और ऐसी बात नहीं की। और मैंने, अगर मुझे लगा कि किसी जगह पे मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, इंसाफ के लिए जाना पड़ा, तो मैं गया।
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہانگیر صاحب کے پاس کوئی بھی ایسی بات ہے جہاں پہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ان کا بالکل یہ رائٹ ہے کہ ان کو کورٹ پہ جانا چاہیے اور اپنے ریلیف لینا چاہیے. 21 شوگر ملے ہیں اور 21 شوگر مل کے ساتھ بالکل سیم جو ہے وہ انصاف ہوگا. اس میں ہمارے کسی دوستوں کی ہو جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, وہ نون لیگ والوں کی ہو یا پیپلز پارٹی والوں کی ہو یا کسی اور جماعت کی ہو یا غیر سیاسی لوگوں کی ہو, ان 21 کی 21 میل کے اوپر اگر کوئی جانبداری نظر آئے تو بالکل میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اس کی نشاندہی کرے. لیکن اگر وہ پیمانہ جو ہے وہ ایک ہوا اور ترازو سب کے لیے برابر پکڑا گیا, پھر میرے خیال میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونے سر یہ بتائیے گا کہ ماضی قریب میں جہانگیر ترین اور علی خان صاحب کا جہاز بڑا مشہور تھا, وہ سواریاں بھر بھر کے لاتا تھا اور وہ پی ٹی آئی میں سواریاں جو ہیں وہ شامل ہوتی تھی. ایک تو بتائیے گا کہ وہ جہاز اس وقت کہاں پہ ہے, اور دوسرا بتائیے گا کہ کہتے ہیں دوستوں میں مشکل وقت آئے تو ساتھ کھڑے ہوتے. جہانگیر ترین آپ کے دوست ہیں اور اگر ان کا مشکل وقت ہے تو آپ ساتھ کھڑے ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ جہانگیر صاحب کا جہاز جہانگیر صاحب کے پاس ہے, میرا جہاز میرے پاس ہے. تو اگر آپ نے چیک کرنی ہو تو دونوں جہاز جا کے چیک کر لیجیے گا. دیکھیں, میں پہلے آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں. میں نے تو پہلے کہا ہے, دیکھیں میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, سب سے پہلے تو میں احتساب سے گزرا ہوں, ٹھیک ہے. میں سیدھے وزیر تھا, میں نیب گیا, نیب نے مجھے پکڑ لیا, میں 100 دن جو ہے وہ جیل میں رہا. میں نے کسی دن نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نہیں نکالا. یہ میرا خیال میں اگر یہ صرف جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ نہیں ہے, یہ سب کا معاملہ ہے. وہ 21 کی 21 بلیں جو ہیں, اگر انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے جو لیگلی جائز نہیں تھی, یا ذخیرہ اندوزی کی ہے, یا اس کے اندر کوئی ایسے حربے استعمال کی ہیں جو کہ قانوناً ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے, تو پھر میرے خیال میں احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے. وہ وزیر ہمارے اندر بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں, یہ انصاف تو میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ ترازو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور ہوگا. اور اگر آپ کو کسی جگہ لگا کہ یہ جو احتساب ہے یہ کسی شخص کے لیے نرم ہو رہا ہے, تو بالکل آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر جواب دیں گے. آپ نے بتایا کہ جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی جدوجہد ہے, تحریک انصاف کی ضرورت. اب یہ بتا دیجیے کہ اب بھی جہانگیر ترین کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو, یہ کیا کام؟ دیکھیں, یہ ضرورت کی بات نہیں ہے, یہ تو تحریک انصاف کا وہ حصہ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لیے انہوں نے بہت خدمات دی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کی, کسی بھی کارکن کی پارٹی کو ضرورت نہیں ہوتی. ہر ایک شخص امپورٹنٹ ہے, ہر کارکن امپورٹنٹ ہے. جس نے جتنا بھی حصہ ڈالا اس نے اپنی بساط کے مطابق ڈالا, اور اس سٹرگل کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے حصہ ڈالا, جو ہماری مائیں بہنیں جو ہمارے لیے دن رات عمران خان کی زندگی کے لیے, عمران خان کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہی, حصہ ان کا بھی ڈالا. یہ صرف ایک کسی شخص کے حصے کی بات نہیں ہے, ہر شخص نے اس تحریک میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. کسی کی بساط زیادہ تھی, کسی کے بس میں کم تھا, پر ہر شخص جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں حصے دار تھا. اور جہانگیر ایک منٹ نا, ادھر آ جاؤ, ادھر پاس جی عمر. دوسرا سوال بھی لے لیں تاکہ جواب ہماری کنزمپشن ہے پنجاب میں, اور اس کو ہر حال میں ان انٹرپٹیڈ چین سپلائی کے طور پہ 155 میٹرک ٹن ملیں پابند ہوں گی پنجاب کو دستیاب کرنے کے لیے. اور جو 2018
आज 2021 में भी हुकूमत पंजाब ने उन सहूलत बाजारों में, रमजान बाजारों में ये जी आपने बहुत अच्छी बात की है और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी निशानदेही है। और अगर हम इसके लिए हमने हर ज़िले के लेवल पे इसकी कमेटी बनाई है जिसको हमारे एक सूबाई वजीर हेड करेंगे और उसमें एक सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो भी उनके साथ होंगे। और ये पूरे रमज़ान के दौरान हम इस बात की ना सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि इसको यकीनी बनाएंगे कि जो म्यार है उसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सिर्फ कीमत नहीं होगी बल्कि म्यार भी होगा और दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और आपने जिस बात की निशानदेही की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर पहरा देंगे। जहाँ तक आपने गंदम की बात की तो भाई हमने 1800 रुपये रखी है लेकिन हम 1800 पे खरीद रहे हैं। कुछ लोगों ने 2000 रखी है पर वो 2000 पे खरीद नहीं रहे। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदारा उसको 2000 पे खरीदें ताकि अवाम को तो कम अज कम उसका कोई फायदा हो। और अगर उन्होंने कोई मखसूस तबके के लिए रखा है 2000 और मखसूस लोगों से खरीदनी है तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर अवाम को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को भी अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए कि अगर पंजाब में 860 रुपए का आटा मिल सकता है तो कराची में क्यों नहीं मिल सकता। और ये अब मेरे ख्याल में अवाम उनसे पूछेंगे। चलो चलाते हैं तो क्या पंजाब हुकूमत जा सकती है? अच्छा, खान साहब ये फरमाएं कि एक आटे के ऊपर भी ऑपरेशन बना था, आटा भी चोरी हुआ था पंजाब का और उसमें एक वजीर को हटाया भी गया था। क्या आप समझते हैं कि उसमें एक वजीर ने वजाहत भी पेश की थी कि उनके भाई जो हैं वो इस मिशन में शामिल नहीं है? तो क्या आप समझते हैं कि उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए? जैसा कि आप 1 साल तक एहतसाब की चक्की में फंसे और आपका मीडिया ट्रायल भी हुआ और इस वक्त कुछ दिन पहले उसी वजीर को बहुत सारे चीजों से हटाया भी गया है। आप क्या समझते हैं कि अब आपको दोबारा जो प्राइस कंट्रोल के व्यक्तियों की तरफ ले आए हैं? क्या चंद दिनों के बाद वजीर बदलते हैं, फिर वजीर आते हैं, फिर जाते हैं? क्या ऐसे होना चाहिए या आटे के वो चोर जो थे वो आज तक मंजरे आम पे नहीं आए? देखिए इसमें बड़ा सिंपल है, वजीर कोई भी हो सब जवाब दें और सब अपने अपने अमाल के लिए अपनी कौम के सामने भी जवाब दें। अल्लाह को तो जवाब दें, हम सब हैं ही। तो इसलिए अगर किसी की आप निशानदेही करें और हमें अगर हुकूमत को पता लगे, वज़ीर आला को पता लगे, खासतौर पे अगर वज़ीर आज़म को पता लगे तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। हमारा वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह का नहीं है कि वो सियासी मफाद के लिए किसी को स्पेयर करेंगे। और अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्जाम आता है और उसके लिए आप कोई सबूत बताते हैं कि जी उसने कोई करप्शन किया तो कोई भी वज़ीर हो तो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर सख्ती से जो है वो उजाला किया जाएगा। शरारत है इस सवाल में सवाल शरारत की और कुछ भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कबीना जो है पंजाब की पूरी तरह महफूज हो चुकी है। तो आप सीनियर वजीर है, क्या वाकई ऐसा है या फिर उनके साथ उनकी हामी है तो इसलिए बयान दिए? देखिए मेरा तो बड़ा असूल बिल्कुल सीधा है। अगर मैं मायूस हुआ किसी दिन तो मैं अपने घर जाके बैठूंगा। वजीर बन के भी बैठना और मायूस भी बैठने की जरूरत क्या है? ठीक है, इतनी कौन सी तकलीफ है कि मेरे बगैर मुल्क नहीं चल सकता? तो अगर कोई साहब बहुत मायूस हो गए हैं तो उनको वैसे काम छोड़ के तो अपने घर जाके रेस्ट करना चाहिए। मुझे तो कोई मायूसी नहीं है, ना इस मुल्क से मायूसी है और ना अपने लीडर से मायूसी है। इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा कि जिस तरह वादा किया गया था उस तरह जो है वो शहर के अंदर जो है कैमरे नहीं लगाए जा रहे हो, इंतजाम नहीं किया है। देखिए ये कल जो है एक ऐसे हल्के के अंदर जहां कोरोना के स्प्रेड की रेशो जो है वो 21% है और एक इंक पैड से कई अंगूठे लग के जो बैलेट पेपर मिलने हैं। तो कल इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक इम्तिहान का दिन है कि वो किस तरह कोविड पे SOPs पे अमल करते हुए उस हल्के में इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। जहां तक हुकूमत की जिम्मेदारियों का ताल्लुक है तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के तय करदा जो ज़ाब्ते थे, हदायत थी, प्रिंसिपल थे, गाइडलाइंस थी,
उन पे ना सिर्फ 100% अमल दरामद किया बल्कि रेंजर्स और फौज को भी अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखा है। एक तरफ जो है वो हुकूमती इक़दामात और हल्के के अवाम की ख्वाहिशात हैं, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन और हमारी अपोनेंट बहन जो है उम्मीदवार जो है उनका रोना और पीटना है। तो इन सारी चीजों के दरमियान हम तो हैं वन ऑफ दी सबॉर्डिनेट, एक हुकूमत का जो फर्ज होता है सहूलतकारी करना। हुकूमत पंजाब हर तरह की सहूलतकारी करने जा रही है, लेकिन अब लोगों को पकड़ पकड़ के नून लीग के लिए मोहरे लगवा के उस बैलेट बॉक्स में वोट डलवाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो ये चाहती है कि ये काम भी हुकूमत करे और नून लीग को जिता के उनकी फतह का ऐलान करे तो वो आसन अंदाज से कोई और कर रहा है उनके लिए। तो हुकूमत को ये करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत का काम है वहाँ रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना इलेक्शन के लिए और लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना, जिसके लिए हम तमाम तर इक़दाम उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई हवाई फायरिंग करके, कोई किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई मसलसल वावेला और बैन और नोहे पढ़ के उस इलेक्शन में जिंदा रहने की कोशिशों में मसरूफ है। हम ये समझते हैं कि डस्के की आवाम ने कल ये फैसला करना है कि एक तरफ जो है वो उनका कैंडिडेट जिसको वो जिताएंगे वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनेगा, 1 अरब से जायद का पैकेज जो है वो उस हल्के की अवाम की तरक्की के लिए लेके आएगा, और दूसरी तरफ जो है वो मनशियात फरोश, गुंडागर्दी और कब्जा ग्रुप की रवायती सियासत है जो उस हल्के के अंदर जो है वो खसूसी तौर पे कई दहाइयों से जानशीनी और गद्दी नशीनी की जो सियासत थी वो चल रही थी। कल वोटर ने या उस पर ठप्पा लगाना है या एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है, ये फैसला उन्होंने कल खुद करना है वोट की पर्ची से। मुआवनी खुसूसी तलाक पंजाब डॉक्टर फरदास आशिकावान और सूबाई वजीर बराए खुराक अलीम खान लाहौर में मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि आटे और चीनी की कीमतों के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। रमजान मुबारक में ये कोशिश की जाएगी कि जो कीमतें हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई हैं अशिया ज़रूरिया की, उन्हीं कीमतों पर आवाम को ये अशिया मिल रही हो। जहाँ कहीं ऐसा नहीं हो रहा है वहाँ हम आवाम से अपील करेंगे